Pernem. A creative circle. Pernem winning the toss and deciding to bowl first against the very heavyweights of this game, Parsem. They'll quickly hurdle. They'll get in their groove and try and send their two best batsmen in the middle for the opening pair. Is the and to start off, as far as a creative circle Pernem are concerned, it is Nehal Tusmad, Sahil Wangadkar, along with Amir Salgaonkar as the opening partners. Amir Salgaonkar played a fabulous knock yesterday. Reverse sweep attempted, straight to the fielder, gets a feed to it and gets off the mark. Sahil. Score moves on to 1. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. You can see all the games in very crystal clear picture. Pristine quality of camera work. One of our cameramen just besides us. Red joggers, and exactly opposite to him in yellow. Remembering maybe Akshay Kumar with some different kind of dressing sense. Nicely cut away. Fielder will have some work to do to track that down, but that's fast outfield in that particular region. That's 4.
Score moves on to 5 with that boundary. Again, a slow delivery straight to the man. Chance of run out at the bowler's end. Not quite. Another single has been taken. Score moves on to 6. 6 on the scorecard. First over in progress in the semi-final one between Saish 11 Parsem and a creative circle Pernem. Oh, excellent delivery. Real snorter of a delivery. That one just took off and went the other way. Outswing. There he goes, down the ground and into the box for half a dozen. Huge hit from Sahil Vaigankar. Reverse, oh, gone. Maybe the back of the bat and the middle stump has just taken a step back. Sahil Vaigankar departs in the very first over. After 1, it's 12 for 1. Saish 11 Parsem. Sahil. But this time it's Sahil Arolkar. Kunal Asolkar from the far end. 12 for the loss of 1. 12 for 1. Very unfortunate. Getting the back of the bat and onto the stumps. Sahil Vaigankar was playing so well. Hit a maximum down the ground and then tried the reverse. This time down the leg side and that will be wide. Extras. Score moves to 13. In case if you have joined just now, then this is Pernem Premier League 2025, powered by Comanchal Dairy. Nicely played. Straight to Tanmay. Chance of run out. Direct hit. They sense something. And the TV umpire has been called in to just check whether if Amir Salgaonkar is all right or not. This could be double blow if he goes.
And that will be red light. Tanmay Shetty with that throw. And sends the tall left-hander back in the dugout. So 2 wickets down now of Parsem. Saish 11 Parsem, 13 for 2. In walks the skipper. What kind of pressure he's under now. Yes, he had lost 2 set batters, both the openers. Very quickly, him and Sahil need a partnership. If they are in chance of putting a total on the scorecard. Semi-final pressure, it can get to anyone. But that is superb bit of outfielding by Tanmay. Picked it up and bullseye. He hit on the stumps, sending Amir Salgaonkar back in the pavilion. 13 for 2. Both new batsmen at the wicket. Both haven't faced a single delivery yet. Nicely bowled. Good delivery. Completely enticing the batsman Kunal. That will be a dot. What drama we've seen in the first 2 overs itself. Maximum being hit, then Sahil getting out, and now that fabulous run out by Tanmay Shetty. Swing missed. That one went on with the arm and it went through Sahil Arolkar. Another dot delivery. Semi-final 2 coming up. Ganapati Warriors Ozrim to take on HYS Warriors Hasapur. Nicely bowled. Quick delivery. And will pick up a single. Gets off the mark with a single, does Sahil. Score moves on to 14. Can we have a new champion in this last edition of PPL? We haven't been told that any time Ozrim has won it. Parsem has won. HYS Hasapur has won. Perennim has also won. Rajat Kudalkar in that side of Ozrim. He has got all the prowess. Nicely played through the covers. That will be runs. That will be a boundary. No stopping that one. Along the carpet. Fast outfield into him. And it's 18 for 2. Ram gets off the mark with the boundary. Kunal into his last delivery of his first over. Turn to the bat, will find one. Will be just a single to end the over after completion of 2. It's 19. 19 for 2 after completion of 2 overs. Saish 11, Parsem.
Flashing the blade outside the off stump, trying to just feel the ball. Missing out on that one. Dot delivery. Very lucky not to have found anything off the bat. Good delivery. Wants to come back for the second. He's very quick. And will make it. Yes, indeed, he will. The throw was good, but just that Babu couldn't quite carry it onto the stumps. Or maybe at a better height would have been a different story. 2 more runs added. Score moves to 21. 21 for the loss of 2 wickets. Third over in progress in this batting of Saish 11. Parsim. Plenty of support for both these teams. Nicely bowled. Played it with soft hands. Another single taken. Rolls the strike over. I've got plenty of bowling options. And also up his sleeves has Sai Zore, has Tusman as well. Maybe try and bowl him the Dhruv over. Tanmay Shetty as well. He can roll his arm over. It's time to enter the bat in the gap. Now so, a bit of misfield. Sohail to mop it up. Picks it up and throws it back. 2 more runs added. Good running between the wickets with these two. One thing for certain, these two in the middle, they will look and get as many as possible. They are very busy in that particular fashion. Won't be able to decide which one is more busier than the other. Nicely played. That has been sliced away. Tanmay will pick it up, throw it back, and 2 more runs added again. Score moves to 26. 26 for the loss of 2 wickets. 1 delivery remaining in this third over. Discussion between the keeper and the bowler. Nicely played. Waited for it. And just played it with soft hands. Will just be a single. 3 overs done. It's 27. 27 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs. Going at 9 runs per over. Saish 11. Parsim. Kunal Asolkar to bowl his second, bowling from the opposite end. 27 for the loss of 2 wickets after 3. Nicely bowled, nicely played as well, looking for a quick single chance. No, not throwing it intentionally, as he knows that already that single has been achieved.
plenty of batting to come as far as Parsem are concerned. Still have Aman Manihar, Krishna Naik, Rohit Mandrekar, Shubham Redkar, Sai Shramji as the power hitters. That's whacked on the onside. Straight to the fielder. Now so as well. Throws it back. Just one. Another single taken. Score moves to 29. Two deliveries, two singles. Slight change in field. Wants the man from back to the point to be at exactly the position where he wants to, at the point boundary. Swing and a miss. Trying to go the aerial way. Maybe try and blast that one over the cow corner mid-wicket fence. One-half century for Sahil in this PPL this season. Nicely bowled, and will pick up yet another single. Will be relatively happy, the A Creative Circle Pernem, with the kind of proceedings right now. Not allowing the batsman to charge at them or maybe try and power some boundaries. Singles, doubles won't matter much for them. Full toss, and that will very well saved by Sai Zore. He is an absolute acrobat in the field. Number 202, Sai Zore. You'll see his exploits with the bat. Regarded as Mr. 360 of Goa. Shots all round, mostly behind the keeper. Got his own fan team here as well. Good delivery. Again, nicely bowled. Will be 5 of that over. After completion of 4 at the halfway stage, it's 32 for 2. 32 for 2 after 4 overs. Sai Shalem and Parsem. At the wicket, we have Sahil Arolkar and Ram Nagwekar trying to build a partnership. Let's see if they can try and accelerate later on. As far as Kunal's bowling figures are concerned, 2 overs, no maidens, 12 runs, and no wickets. At the start of the new over, it will be Ashok Naik sir with you in the comm box. थैंक यू, धन्यवाद श्याम कलंगुटकर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8 रन प्रति ओवर के साथ रन बना रही है साई शैलेवन पारसेम क्रिकेट टीम। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी में परिवर्तन बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं लक्ष्मण सावड़ देसाई, जो खुद का दूसरा, टीम का 5वां
और दो बैटर है मैदान पर। एक और से साहिल आरुलकर थोड़ा सा शांत क्रिकेट, अब तक 10 गेंदों में 9 रन, और राम नागवेकर 7 गेंदों में 10 रन। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करती हुई एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम, और बल्लेबाजी करती हुई साई शैलेवन पारसिम क्रिकेट टीम। पर्व 10वां इस प्रतियोगिता का, पेडने प्रीमियर लीग, पावर्ड बाय गोमलचल डेयरी। फुल टॉस गेंद हवा में मार बैठे मिड ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ एक आसान सा मौका बना, सफलता मिलती हुई और तीसरा विकेट चला गया। नेहाल जो कि मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, आप tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं। मैदान पर उपस्थित काफी दर्शक है, सभी मान्यवर, और एलईडी स्क्रीन पर आप जरूर बीच बीच में रिप्ले देख सकते हैं। चलिए ले चलते तब तक डीजे के साथ। सेंचुरी बनाई थी, अर्धशतक बनाया था, वो बल्लेबाज आउट होकर वापस एक लोअर फुल टॉस। कभी कभी फुल टॉस गेंदे भी काफी घातक साबित होते हैं, और वही हुआ, बल्ले पर बीचों बीच नहीं लगी, मिड ऑफ पर मौका बना, कैच को पकड़ा, और नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर साई श्राम जी। एक साझेदारी बनानी पड़ेगी साई शैलेवन पारसिम क्रिकेट टीम को। 8 ओवर का मैच है, एक कम से कम 80 के आसपास तो जाना पड़ेगा इस मैच में, और फिलहाल देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। अपने बॉलिंग मार्ग पर लक्ष्मण सावर देसाई, टीम के विकेट कीपर गौरेश सावर देसाई उर्फ बाबू। छोड़ा, इस बार जाने दिया गेंद को ऑफ से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 33 रन पर 3-3-3। फिर से बाहर ऑफ स्टंप से, थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। वाइड बॉल का इशारा, एक शायद विकेट मिल चुका है, और उसके बाद लगातार 2 वाइड बॉल, 2 रन लगातार बने स्कोर के खाते में। 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर जारी है मैच का, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला दोनों के बीच का। बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे, शॉर्ट पाइल लेग पर फील्डर। उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद और बल्ले के बीच में। अभी अभी आ चुके हैं बिल्कुल मैदान पर साई श्राम जी, नॉन स्ट्राइकर इन पर है राम नागवेकर, और आउट होकर वापस इस ओवर में एक बड़ा विकेट मेरे ख्याल से खोती हुई साहिल आरुलकर का। इस बार दूर से खेला, गेंद हवा में, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, सीधे फील्डर के बिल्कुल तन्मय, जो कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बहुत दूर थी बल्ले से, लगभग वाइड लाइन पर, और इसका पीछा किया इस बार साई श्राम जी ने, और एक्स्ट्रा कवर पर बिल्कुल तैयार थे कैच के लिए। सफलता मिलती हुई इस ओवर में, और एक सफलता हासिल करते हुए लक्ष्मण सावर देसाई 34 रन 4 विकेट पर। डीजे एक अच्छा ओवर चलता हुआ एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला, और एक नियंत्रित गेंदबाजी देखने को मिल रही है। लाइन टू लाइन बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फील्डिंग भी अच्छी कर रही है। और शुरू से अगर एक बात अगर बताया जाए तो लगभग थोड़ा सा जो कि जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद, इस बार बहुत ही शानदार शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, अपना खाता खोला रोहित मंद्रेकर ने एक सिंगल के साथ, और
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर पहुंचा। टोटल 4 विकेट के नुकसान पर 35 लॉस ऑफ 4 विकेट। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं राम नागवेकर, जो सामना करेंगे लक्ष्मण सावल देसाई की गेंदबाजी का। फिर से हवा में मार बैठे कवर पर, और क्या ओवर रहा ये लक्ष्मण सावल देसाई का। एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम की ओर से 3 विकेट चटकाए इस ओवर में। शानदार गेंदबाजी। टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ 35 पर 5 विकेट के नुकसान पर। वन टू गो। और ये ओवर इस तरह से रहा। पहली गेंद पर विकेट चला गया, वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल, डॉट गेंद, विकेट, सिंगल और विकेट। 1 टू गो। 1 टू गो। फिर से एक बार जानकारी। पहली गेंद पर विकेट मिला, लगातार 2 गेंदें वाइड बॉल, डॉट गेंद, विकेट, सिंगल, विकेट। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। आकाश नाइक। स्कोर रुका हुआ 35 पर 5 विकेट पर। बहुत ही शानदार ओवर लक्ष्मण सावल देसाई का। इस ओवर में लगातार विकेटों का पतन देखने को मिला साई शैलेवन पार्सन क्रिकेट टीम का। और देखना होगा नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, आकाश नाइक और उनका साथ देते हुए रोहित मांद्रेकर, जो खुद के व्यक्तिगत 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। 5वां ओवर जारी है। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है इस पहले इनिंग का। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, 2 फील्डर, जो कि 2 फील्डर अगल बगल में। एक वाइड यॉर्कर, हल्का सा अपील, वाइड यॉर्कर, एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ शानदार ओवर लक्ष्मण सावल देसाई, जो कि इस ओवर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में और 3 विकेट हासिल किए। बहुत अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ। 7 रन प्रति ओवर रन बनाते हुए साई शैलेवन पार्सन क्रिकेट टीम 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। ध्रुव ओवर का पीपीएल ओवर का इशारा होता हुआ अंपायर का, और सामने वो ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर नेहाल तुस्बड़ ओवरसीज खिलाड़ी वो आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। 2 बैटर मैदान पर, रोहित मांद्रेकर और आकाश नाइक। 5 ओवर समाप्त हुए। ये ओवर बहुत मायने रखेंगे साई शैलेवन पार्सन क्रिकेट टीम को। इस ओवर में 15-20 रन तो बनाने पड़ेंगे। और सामने अगर बात की जाए तो एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम को
ये ओवर और एक अच्छा ओवर बनाना पड़ेगा, एक दूसरा और विकेट, शायद आने वाले बल्लेबाजी पर दबाव और बढ़ जाएगा। फिलहाल देखना होगा क्या होता है। इस बार पीछा किया था, एक लेग कटर कट होकर बाहर की तरफ निकली, कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, डॉट गेंद, बाकी का काम पूरा किया। विकेट के पर गौरेश सावल देसाई ने 30 यार्ड सर्कल पर सभी फील्डर मौजूद जो भीतर, और चलता हुआ ये ध्रुव ओवर, पीपीएल का ओवर। ये गेंद इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल का इशारा, और नो बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। शायद ओवर स्टेप हो गए नेहाल तुस्मड़, और देखना होगा इस फ्री हिट पर क्या होता है। तेज गेंद इस बार फिर से कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन उतना फायदा कोई नहीं मिला रोहित मांजरेकर को। इस नो बॉल का गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर रिव्यू ले चुके हैं। देखो अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की, और जो पिछली गेंद पर जो कि देखा जाएगा फिलहाल वाइड बॉल है या नहीं, या फेयर डिलीवरी है। तीसरे अंपायर हमारे जुड़ चुके हैं बिल्कुल टेनिस क्रिकेट डॉट इन के साथ, स्क्रीन के साथ देखा जा रहा है। तो अंपायर का इशारा होता हुआ फेयर डिलीवरी, एक डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पिछला ओवर खास करके बहुत अच्छा रहा लक्ष्मण सावल देसाई का, सिर्फ 3 रन दिए, 3 विकेट चटकाए अपने बॉलिंग बार पर। नेहाल तुस्मड़ फिर से पटके हुई गेंद, काफी गुडले स्पॉट पर उछाल भी मिल रहा है, गेंद काफी तेजी के साथ कट होकर बाहर की तरफ भी निकल रही है। रोहित मांजरेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं ऑफ साइड पर कट करने की, कवर पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। लगातार बिंदी गेंदे इस ध्रुव ओवर में। दोबारा ऑन साइड पर अच्छा शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे पहले निकलते हुए बड़ी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ बल्लेबाजी में साई शाइलिवन पारसिम क्रिकेट टीम की ओर से। तवा 40 पर पहुंचा, 40 रन 5 विकेट पर। थोड़ा सा ऑफ साइड पर कट किया, गेंद को रन के लिए निकले, देखना होगा नॉन स्ट्राइकर इन पर निशाना लगाया, मिड ऑन पर बैकअप, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। 41 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 41 लॉस ऑफ 5 विकेट, 41 रन 5 विकेट पर। इस ओवर के बाद आने वाले 2 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी है। तेज गेंद इस बार फिर से हरकत करते हुए बल्लेबाज को अचंभित करते हुए गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में। एक शानदार ओवर, अच्छा ओवर समाप्त हुआ। एकमात्र इस ओवर में चौका जरूर लगा, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा सा जो कि खामोश रखा नेहाल तुस्मड़ ने। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, 6 ओवर समाप्त हुआ, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, यानी 12 गेंदों का, और 75-80 के आसपास जाना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि दोपहर के मुकाबले अलग थे, धूप थी बिल्कुल, विकेट भी गर्म थी, 100 का टोटल 90-100 का टोटल अलग बात थी। लेकिन इस मैच में देखा जाएगा फिलहाल आने वाले 12 गेंदों में। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, साइज जोरे आ चुके गेंदबाजी के लिए, फिर की गेंदबाजी
छठे ओवर की समाप्ति हुई और 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 2 निर्णायक ओवर, 12 गेंदों का खेल बाकी। साइशा पारसेम को कम से कम 25-30 रन बनाने पड़ेंगे और सामने एक क्रिएटिव सर्कल। अब तक की अगर बात की जाए, बिल्कुल अनुशासित गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग बहुत अच्छी रही है। अब देखना होगा फिलहाल आने वाले 12 गेंदों में क्या होता है। ये ज्यादा टर्न हुई इस बार गेंद, टिप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, और इस बार गैप में गेंद लॉन्ग ऑन और वाइड लॉन्ग ऑन के बीच में 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 46 रन पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर साइज जोरी अपने बॉलिंग बार पर आगे निकले बड़े शॉट के लिए, गेंद के लाइन से बीट हुए। एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, ज्यादा इस बार फ्लाइट दिया था, बल्लेबाज को आगे खींचा था, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद निकली विकेट कीपर गौरेश सावड़ देसाई उर्फ बाबू के हाथों में। इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा टोटल 47 रन पर। बड़े शॉट चाहिए, बल्लेबाजी बाकी है, अभी भी थोड़ी सी जोखिम लेनी पड़ेगी बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए। एक कम से कम 2-3 आने वाले 9 गेंदों की अगर बात की जाए तो 2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे साइशा 11 पारसेम क्रिकेट टीम को स्कोरिंग में। और सामने बिल्कुल अच्छी नतीकुली गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी भी हो रही है और उन्हीं के साथ फिर की गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है। साइज जोरे अपने बॉलिंग बार पर। शानदार शॉट, कट का इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, बैकअप देखने को मिला और जब तक गेंद को कलेक्ट करते फिर से 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छा शॉट, फील्डिंग भी बहुत अच्छी और मिले 2 रन। 2 रन बड़े स्कोर के खाते में, 49 पर टोटल पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। आज दोपहर के सत्र में बड़े टोटल के मुकाबले देखे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में साइशा 11 पारसेम क्रिकेट टीम रनों के लिए बिल्कुल संघर्ष कर रही है मैदान पर। टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए, गेंदबाजी करते हुए एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम। अच्छा शॉट, इस बार मिड ऑफ के फील्डर को बीट किया और लंबी दौड़ लगाई थी, लेकिन गेंद से दूर थे। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 53, लॉस ऑफ 5 विकेट। पांच विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर साइज जोरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। आकाश नाइक और उन्हीं के साथ रोहित मांद्रेकर ये जोड़ी मैदान पर। 6 पर बल्लेबाजी करते हुए आकाश नाइक, रोहित मांद्रेकर खेल रहे 10 गेंदों का सामना करते हुए 11 पर, और साइज जोरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, इस बार फिर से लेग ब्रेक गेंद मिड स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली, स्लिप पर फील्डर गेंद, फील्ड करते खेल समाप्त होता हुआ और एक ओवर का 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 53 रन, 5 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो, कम से कम 2-3 बड़े शॉट चाहिए आखिरी ओवर में साइशा 11 पारसेम क्रिकेट टीम को। और सामने अब तक जो बेहतरीन गेंदबाजी की है, जो बिल्डिंग की है,
मेरे को ख्याल से उसी को दोहराना पड़ेगा, कम से कम एक 8-10 रन पर सीमित करना पड़ेगा। शायद 60-65 का टोटल सामने जो कि चेस करने के लिए बात थोड़ी सी आसान होगी। क्रिकेट है, बात करना गलत बात है, लेकिन देखना होगा अंतिम ओवर में 6 गेंदों में कितने रन बना लेते हैं और बॉलिंग मार्ग पर कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, तन्मय शेट्टी आ चुके हैं, एक बहुत अच्छे फील्डर है। देखना होगा अंतिम ओवर, सामने रोहित मांद्रेकर और आकाश ने ये जोड़ी थोड़ा सा जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं जरूर, लेकिन देखना होगा फिलहाल कहां पर ले जाते हैं अपने टीम को। दूर दूर जमाएगी फील्ड, काफी दर्शक। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम, मैं स्कोरिंग के साथ चर्चा करूंगा स्कोरर के साथ। वाइड बॉल अब तक कितने हो चुके हैं इस मैच में? 5 गेंदे अब तक वाइड बॉल हो चुके हैं, तो ये शायद अपने एक्स्ट्रा रन, एक नो बॉल इस बीच में, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा रन आपने दिए हैं। बड़ा पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, गैप में खेलने में असफल रहे। गेंद सामने बिल्कुल मिड ऑफ पर फील्ड होती हुई और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने वाले दूर वाले छोर से तन्मय शेट्टी अगली गेंद लेकर। इस बार कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, थोड़ी सी हड़बड़ा, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा। जी बिल्कुल, मिसफील्डिंग हमेशा धोखा देती है, कई बार देखा है। मिसफील्डिंग जब जब होती है तो रनआउट का खतरा रहता है, और वही हुआ मैदान पर, और एक सफलता मिली एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम को। ठीक खिलाड़ी अमन मणिहार 55 रन 6 विकेट पर, आखिरी ओवर का खेल जारी है और न्यू बैटर आ चुके हैं। और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, जिस शॉट की बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार था वो लगा बल्लेबाजी में। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत, जो tenniscricket.in से जुड़ चुके पीपीएल के साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक स्टैंड में, जो कि रोड पर, रास्ते पर यहाँ पर बैठकर इस मैच का आनंद लेते हुए, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से, दिल की गहराई से बिल्कुल हार्दिक हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से अंतिम ओवर का खेल जारी है, शायद 70 का टोटल आसपास का टोटल मायने रखेगा। अच्छा मैच होगा, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, ये टोटल मेरे ख्याल से, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है, थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव होता है इस मैच में सेमीफाइनल के मुकाबले में। फिलहाल 61 लॉस ऑफ 6 विकेट। दो बल्लेबाज है मैदान पर, रोहित मांद्रेकर और उन्हीं के साथ ओवरसीज खिलाड़ी अमन मणिहार। एक ओर से नेहाल तुस्माड़ है और एक ओर से है अमन मणिहार। थोड़ी सी मैदान पर खेल रुका हुआ, शायद बॉल बॉयज के साथ आकाश उर्फ डंबा, और सामने एक बार फिर से रोहित मांद्रेकर।
18 पर खुद के व्यक्तिगत 13 गेंदों का अब तक सामना करते हुए तन्मय अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, गैप में गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर, आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बहत्तर का टोटल एक निश्चित रूप से फाइटिंग टोटल होगा मैच का। देखना होगा फिलहाल आने वाली गेंद पर क्या होता है। तन्मय अपने बॉलिंग मार्ग पर और स्ट्राइक पर बैटर है रोहित मांजरेकर। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। लगभग जो मैच 8 ओवर का था वो 9 ओवर का बन चुका है एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम की ओर से और रिव्यू ले चुके हैं इस बार अंपायर। देखा जाएगा फिलहाल कि ये गेंद सही है, फेयर डिलीवरी है या नहीं, या वाइड बॉल। और तीसरे अंपायर हमारे जो कि टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ चुके हैं। फेयर डिलीवरी। तो चलिए और एक डॉट गेंद निकली, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 65, 65 रन। लास्ट बॉल टू गो। देखना होगा किस तरह से रोहित मांजरेकर इस गेंद के सामने किस तरह से खेलते हैं। सामने थोड़ा सा रोका अपने बॉलिंग मार्ग पर रनअप को, जो कि दौड़ना शुरू किया था तन्मय शेट्टी ने, लेकिन उनको रोका। शायद थोड़े से तैयार नहीं थे सामना करने के लिए। और स्कोर बोर्ड पर टोटल 65 रन। अगर बड़ा शॉट लगा तो 71 बनेगे। डॉट गेंद निकाली तो 66 का टारगेट। ये गेंद इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। रन लेना चाहते थे और देखना होगा और एक सफलता मिली। रोहित मांजरेकर रनआउट के रूप में आउट होकर वापस। साइशा 11 पारसम क्रिकेट टीम और एक विकेट खोते हुए टोटल स्कोर हो चुका है 65, 65 रन और रिव्यू ले चुके हैं। देखना होगा फिलहाल क्या हुआ वहां पर मैदान पर। तीसरे अंपायर एक बार फिर से बिजी दिखाई देते हुए, शायद वाइड बॉल के लिए ये रिव्यू ले चुके हैं। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। तो टोटल 65। एकमात्र बल्लेबाज रोहित मांजरेकर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। 22 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए और एक बड़ा शॉट लगाया, छक्का लगाया। तो ये था लेखा जोखा बल्लेबाजी का। एकमात्र बल्लेबाज जो 2 अंकों में डबल फिगर में जिन्होंने 22 रन बनाए रोहित मांजरेकर ने। और 8 ओवर का खेल, 65 रन और मैच को जीतने के लिए 66 यानी 66 रन। मेरे ख्याल से टोटल कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पर मुकाबला हो सकता है क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है। और देखना होगा गेंदबाजी फील्डिंग तो बहुत शानदार की एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने। बल्लेबाजी किस तरह से होगी, गेंदबाजी सामने, फील्डिंग किस तरह से होगी साइशा 11 पारसम क्रिकेट टीम। आइए जानकारी एक छोटा सा ब्रेक हमारे डीजे के साथ और कॉम बॉक्स में आवाज जय भोसले और श्याम कलंगुटकर की।
पेनएम प्रीमियर लीग 2025 दशक पूर्ति एक क्रिकेट टूर्नामेंट और पहला सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं इस मैदान पर। ये 10 सालों का सफर किस तरह से गुजरा है उसके बारे में थोड़ा सा गौर फरमाइए। 3 बार इस प्रतियोगिता को जीता है क्रिएटिव सर्कल पेनएम टीम ने, 2 बार जीता है पारसे टीम ने, 2 बार जीता है कोरगांव टीम ने और जो कि 2 बार जीता है हसापुर टीम ने। पिछले साल एक क्रिएटिव सर्कल पेनएम अंतिम विजेता रही थी और आज भी सपना उन्होंने देखा है कि इस प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले में खेलने का। कुछ हद तक गेंदबाजी अच्छी रही यहाँ पर क्रिएटिव सर्कल पेडनेम टीम की। सीमित स्कोर के ऊपर रोका गया है साई शाइलियन पारसम टीम को। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बीच के ओवर में रन नहीं बने, लेकिन आखिर के 2 ओवर में 24 रन बने, जिसके चलते हुए एक सम्मानजनक टोटल, एक फाइटिंग मैं तो कहूँगा इस रात के वक्त इस मैदान पर बनाया है। 65 रन बनाए हैं। जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 66 रनों का लक्ष्य रखा है क्रिएटिव सर्कल पेडनेम के सामने साई शाइलियन पारसम टीम दे। साई शाइलियन पारसम टीम के पास अच्छी गेंदबाजी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक की अगर बात की जाए अमन मणियार ने इस प्रतियोगिता में की है, साहिल वांगणकर ने की है, साहिल आरोलकर भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी, साथ साथ आकाश भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो ये मुकाबला उतना आसान नहीं होगा सामने वाली क्रिएटिव सर्कल पेडनेम टीम के लिए, लेकिन देखना है। क्रिकेट है, एक अच्छा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, दर्शकों को लुभाने वाला मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। अगर बल्लेबाजी की बात करी, एकमात्र बल्लेबाज रोहित मांद्रेकर जिन्होंने 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 22 रनों का योगदान दिया और 2 खिलाड़ी 9-9 रन बनाकर साहिल आरोलकर और राम नागवेकर आउट होकर वापस निकले थे। जीतने वाली टीम थी एक क्रिएटिव सर्कल पेडनेम टीम और पिछले साल भी उन्होंने ये किताब जीता था। दूसरी तरफ से देखा जाए तो जीती थी और पहली बार, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो फरमाइश बताया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैदान पर 66 रनों की आवश्यकता है और गेंदबाजी के मोर्चे पर अमन मनियार और स्ट्राइक पर बल्लेबाज बायात के साइज झोरे और नॉन स्ट्राइक इन पर गौरीश सावंत। क्या होगा इस मैदान पर, आप एलईडी स्क्रीन के ऊपर इस मैच को भी देख सकते हैं। आज इस अंतिम दिन, अंतिम रात, इस रजनी में ढेर सारे दर्शक भी उपस्थित है, उनका भी इस पेडनेम प्रीमियर लीग दशक पूर्ति प्रतियोगिता के आखिरी दौर में हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, देखिए सवाल पूछने वाली गेंदबाजी, टिप्पा गिरा गुडलिंग स्पॉट के पास, उछाल प्राप्त हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, राम नागवेकर ने बाकी का काम पूरा कर दिया। क्या तेजी के साथ गेंद निकली है, ऐसी गेंदबाजी आपको लेदर बॉल क्रिकेट में हमेशा देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी शुरुआत। थोड़ी सी उंगली पर लगी है, पहले से चोटिल थे, उसी उंगली के ऊपर शायद गेंद लगे, थोड़े से चोटिल हो चुके हैं राम नागवेकर। बहुत जोर से गेंद लगी है हाथ पर।
विकेट के पीछे आ गए हैं साहिल वाइंगटकर। पहली गेंद लाजवाब, काफी तेज रफ्तार वाली गेंद थी अमन की। साइज जोर स्ट्राइक एंड पर। ओ फिर एक बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर हल्की सी अपील भी करी थी। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। लगातार 2 गेंदे डॉट बीट करने में कामयाब रहे पूरी तरह से साइज झोरे को अमन मनियार। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, ये साइज जोरे का पैटर्न शॉट है। गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 2 गेंदें डॉट डाली थी और उसके बाद एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला है साइज जोरे ने। दूसरी रिग में लगता हुआ साइज के बल्ले से। फिर एक बार थोड़े से बाहर निकले, सफल हो चुके थे। इस बार खेल दिया मिड विकेट से, खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, थोड़े से पंबल हो गए, तब तक संवरते, तब तक दूसरा रन पूरा होता हुआ 2 रन और खाते में जोड़ते हुए और इन दोनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। सेमीफाइनल का मुकाबला है और ये दशक पूर्ति ये साल है इस प्रतियोगिता का। साइज जोरे फिर एक बार तैयार, थोड़े से उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में खड़ी हो गई है गेंद। खिलाड़ी गेंद के नीचे आते आते यहाँ पर ओ बहुत बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली, जो कि 2 रन तब तक पूरे हो गए हैं। रोहित मांद्रेकर ने बैकअप बेहतरीन किया, प्रयास अच्छा था फील्डर का, लेकिन उनसे दूर थी। आसान नहीं होता जब हवा में गेंद जाते हैं। 2 रन 1 रन पूरा हो गया। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 7 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया एफर्ट भी डाला था फील्डर ने। हर्ष गाला थे फील्डर, बहुत बढ़िया एफर्ट डाला था। अगर ऐसा ये ऐसे कैचेस हाथ में चिपक जाते हैं, लेकिन दूर थे, बहुत दूर थे। और गौरेश सावर देसाई सामने, अमन अगली गेंद लेकर। ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद, इन मौके पर बल्ले को नीचे लाए, 1 रन और खाते में जुड़ा। बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हो गया है। ये पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त और इस ओवर में निकले हैं 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। पीछा किया जा रहा है 66 रनों का। आठ रन निकले हैं और पावर प्ले का दूसरा ओवर डालने के लिए साहिल वाइंगनकर को बुलाया गया है, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से। और पहली गेंद रिवर्स अटैम्प्ट, स्विच इट, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद निकले डीप पॉइंट की दिशा में 6 रन के लिए। पहला छक्का गौरेश सावर देसाई के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और फिर एक बार निकले, बहुत बढ़िया गैप में खेला स्ट्रोक, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, साहिल गेंद को फील्ड करते संवरते खुद के लिए, तब तक दूसरा रन पूरा हो गया है। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन में और साहिल आरोलकर की बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन तब तक पूरे होते हुए और 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। ये रन आपको रोकने हैं, कस आउट पर गेंदबाजी कर दी मैदान पर।
ये नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, नो बॉल यानी कि आने वाली गेंद होगी लाइसेंस टू किल, फ्री हिट की गेंद होगी। खराब थोड़ी सी गेंदबाजी हुई, थोड़े से अपने पैरों से चूके, जरूर यहाँ पर कदम से चूके, जिसके चलते हुए ये भुगतान करना पड़ा है। और एक रन वैसे ही खाते में जुड़ा है, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ छोटी गेंद सफल हो गई थे, हवाई फायर गेंद, टाटा गुड बाय करते करते गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। पहुंचा अब 23 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत बढ़िया झटपट साझेदारी बना रही है पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज, और आक्रामक रूप अपनाते हुए गौरेश सावय देसाई मैदान के अंदर। फिर एक बार खेला, फिर एक बार थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकलती हुई, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। निकल चुके थे लेकिन गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं, सिंगल जरूर निकलेगा जब तक फील्ड करते। दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ और 2 ओवरों का खेल समाप्त, 30 रन स्कोर बोर्ड पर 66 रनों का पीछा करते हुए क्रिएटिव सर्कल पेडनेट टीम मजबूत परिस्थितियां प्राप्त करते हुए सेमीफाइनल के मुकाबले में। गौरेश सावय देसाई की अगर बात की जाए तो 8 गेंदों का सामना किया है, 22 रन बनाए हैं, उसमें 3 करारे छक्कों का समावेश, 275 रनों का जो कि रन रेट है 200 बना स्ट्राइक रेट बनाकर खेल रहे हैं गौरेश सावय देसाई। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक आध विकेट चटकाना पड़ेगा जल्दी मैच में अगर वापसी करनी है, क्योंकि पहले 2 ओवर में बहुत सारे रन खर्च हो चुके हैं, लगभग आधा टोटल खड़ा हो चुका है पहले 2 ओवर में, और अभी भी एक ओवर जो ध्रुव ओवर आना बाकी है। पावर प्ले के 2 ओवर में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। इस मैदान पर अक्सर कहा जाता है 80 ये अनुमानित टोटल माना जाता है, और उससे भी कम रन बने, 10-15 रन थोड़ी सी जल्दबाजी बल्लेबाजों ने की साइशा 11 पारसिम के, जिसके चलते वो 20-22 रन कम बने। अगर ये 90 के आसपास का टोटल बन जाता तो मैच तगड़ा हो जाता, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ विकेट निकाल लेते हैं तो बात बन सकती है।
बहुत बढ़िया, एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, जानते पता है इस गेंदबाज को किस तरह से खेलना है, इनको विकेट नहीं देना है। गौरी सावय जैसे एक कैलकुलेटेड बल्लेबाजी मैदान पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। 66 रन बनाने हैं, 65 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। साइशा 11 पारसिम टिप दे। अब साइश जोरे स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करेंगे अमन मनियार की अगली गेंद का। बाएं हाथ के बल्लेबाज दोनों तरफ बल्लेबाजी करना जानते हैं। और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला और एक रन के साथ चोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 32 रन। पता है इस ओपनर जोड़ी को, क्योंकि पहले 2 ओवर में रन बन चुके हैं, अब सिंगल डबल से भी काम तो हो सकता है, कोई जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसी सोच के साथ सिंगल के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, लेकिन गेंदबाज को कुछ ना कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। यहाँ पर बल्लेबाज खुद गलती नहीं करेगी, आपको गलती करने के लिए मजबूर यहाँ पर इस मैदान पर करना पड़ता है। वो थोड़े से यहाँ पर अपने लाइनअप में चूके, दर्शक काफी उत्साह भरे वातावरण में यहाँ पर इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके ओ लव्स वो उड़ाया, इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला। डीप में खिलाड़ी है जरूर, गेंद के ऊपर आते एक रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि और 33 रनों की आवश्यकता है। तीसरा ओवर प्रगति पर, अब तक कोई विकेट निकला नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी पावर प्ले में, और इस तीसरे ओवर के इन 3 गेंदों पर निकले हैं 3 सिंगल। पता है फील्डर कहां लगाए गए हैं, आसानी से सिंगल इस मैदान पर निकल सकते हैं। ओ इस बार बैठक स्टॉक, ये इनका पैटर्न शॉट है, देखिए किस तरह से गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अमन को भी नहीं विश्वास हो रहा है ये शॉट कौन सा है और गेंद कहां निकली। 6 रन। अमन के गेंदबाजी पर इस शॉट का साइश ने किया चयन और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा का करने के लिए दर्शन। 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पर। मात्र 27 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी जो कि पॉइंट के लगभग नजदीक खड़ा था, उसके पास कोई रन नहीं, बिंदी गेंद समाप्त हुई। लेकिन इस ओवर में एक शॉट लगाया है, साइज जोरे अक्सर ऐसा शॉट खेलते हैं, शॉट खेलने के बाद इस तरह से पलटा मारते हैं, उसके बाद गेंद जाती है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। ओ खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में, गेंद अंदरूनी किनारे लगते हुए लेग साइड की दिशा में निकले। अब 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 40 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। अब चाहिए और मात्र 26 रन और गेंदें बची है 30 गेंदों का खेल बाकी, 26 रनों की आवश्यकता। क्या यहाँ पर कुछ उल्टापुर हो सकता है, क्या चमत्कार कर सकते हैं गेंदबाज, या एक तरफा मुकाबला जीतकर यहाँ पर फिर एक बार इस साल भी क्रिएटिव सर्कल पे ने फाइनल में प्रवेश करती है, ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में और आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक सर को। धन्यवाद। इलेवन पारसिम क्रिकेट टीम को शानदार बल्लेबाजी कर रहे साइज जोरे, गौरीश सावर देसाई उर्फ बाबू, उनका तो बिल्कुल ये मन पसंदा जो कि मैदान है।
और बॉलिंग में परिवर्तन। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं साहिल वाइंगणकर। स्कोर रुका हुआ, टोटल अब पहुंचा है 40 पर बिना किसी नुकसान से। 26 रन चाहिए यहां से लेकर मैच को जीतने के लिए। छोड़ा, इस बार जाने दिया ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर का, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। सर राजेश शिंगणापुरकर और सर सुशांत साळगावकर। स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ धीरज पालियेकर और कुमारी त्रिवेणी सावंत। और साहिल की अगली गेंद, इस बार फिर से थोड़ी सी परेशानी, लेग स्टंप पर बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक तो पूंजी कम है बिल्कुल आपके पास और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं मैदान पर। स्कोर आगे बढ़ा 2 अतिरिक्त सिंगल के साथ 42 पर पहुंचा। आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज। गणपति वॉरियर्स वज्री और HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम, अगला मैच होगा आप दोनों के बीच का। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कॉम्बॉक्स से संपर्क कीजिए। इस बार ओवर पिच गेंद, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर में। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि आने वाला एक ओवर जो ध्रुव ओवर वो भी बाकी है मैच का। 43 पर पहुंचा टोटल स्कोर 43 बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी चर्चा की, कुछ न कुछ थोड़ा सा अनुभव शेयर किया मेरे ख्याल से गेंदबाज के साथ राम नागवेकर ने। और अब राउंड विकेट आ चुके अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू। कट किया इस बार ऑफ साइड पर, और जब तक कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, शायद खराब गेंदों का इंतजार कर रहे दोनों बल्लेबाज। मालूम है सिंगल डबल के साथ भी बिल्कुल बात बन सकती है। अगर कोई खराब गेंद मिली तो बड़ा शॉट, ये नीति। और एक जो कि ध्रुव ओवर बाकी, और साहिल वाइंगणकर हर तरह से कोशिश तो कर रहे हैं। मालूम है एक विकेट लेकर मैच में वापसी करनी पड़ेगी, और देखना होगा फिर से ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए। ओ फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग पर, हवाई फायर, सिक्सर, 6 रन के लिए। टीम का स्कोर 50 पर पहुंचा। 16 रन की अभी भी जरूरी है मैच को जीतने के लिए, और आने वाले इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बाकी। फुलर लेन की गेंद, इस बार देखना होगा स्लिप की तरफ निकली, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। 51 पर पहुंचा टोटल स्कोर, सिर्फ 15 रन पीछे है ये मुकाबला। एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम, देखना होगा कोई चमत्कार ही अब मात्र हो सकता है तो बच सकते हैं सही 11 पारसिम क्रिकेट टीम। फिलहाल देखना होगा, एक बार फिर से गौरेश सावल देसाई स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। इस बार बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और फिर से एक बार सिंगल बन गया स्कोर में। नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो और एक रन। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। अच्छा 53, 53 रन, 13 रन चाहिए, फ्री हिट की गेंद, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर साइज जोरे। उड़ाया वाडस लॉन्गन, सीमा रेखा पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। सावल देसाई, और इस बार ऑन साइड पर खेला गेंद को, मिड ऑन पर बिल्कुल खाली इलाका, बिल्कुल हल्के कदमों के साथ चले। लॉन्ग ऑन पर फील्डर आते, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल, और इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 60 रन।
बिना किसी नुकसान से। एक बड़ा शॉट चाहिए अंतिम फेरे में प्रवेश करने के लिए एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम को, और देखना होगा क्या होता है जो कि अगले ओवर में। चलिए दोनों टीम कैप्टन प्लीज, गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम और HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम टॉस के लिए। तो मैच का टॉस हो रहा है और HYS हसापुर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा, और मेरे ख्याल से फील्डिंग का फैसला हो चुका है, गेंदबाजी का फैसला हो चुका है HYS हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। गणपति वॉरियर्स वज्री कप्तान है रजत कुडालकर। एक अच्छा मैच होगा, बड़ा मुकाबला होगा। ये सेमीफाइनल का मुकाबला थोड़ा सा एक तरफी रहा, जो उम्मीद थी दर्शकों में वो बिल्कुल मैच में नहीं देखने को मिली। बिल्कुल एक तरफी मुकाबला रहा। शानदार गेंदबाजी बहुत अच्छी की एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने, फील्डिंग बहुत अच्छी की, और एक कम टोटल में जो 90-95 के आसपास जाना चाहिए था वो टोटल नहीं देखने को मिला। और बाद में क्या कमाल के बल्लेबाजी, साइज जोरे हो गौरेश सावड़ देसाई, 6 रन चाहिए, और देखना होगा एक बड़ा शॉट इस मैच को समाप्त करता है या नहीं मैदान पर। और इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, और ये विनिंग शॉट, बहुत ही शानदार टाइमिंग। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। एक तरफी सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी रही साइज जोरे और गौरेश सावड़ देसाई, लेकिन उनसे पहले मैं दाद दूंगा जो गेंदबाजी की, जो फील्डिंग की एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने, और एक कम टोटल में मैच को जो कि रोका। और चर्चा होगी मैन ऑफ द मैच के